Good afternoon, everyone. Due to some technical glitch, we were not able to get my class live. So, sorry for the delay. Today, we are going to start the personal selling. This is the second part of your syllabus, the subject, because the whole subject is based upon the advertising and personal selling and the salesmanship. So it is divided into two parts. We have completed the first part, that is advertising, and today we will be discussing the personal selling. What do you understand by personal selling? However, I have given you an overview of personal selling, that how it works and what is included in the personal selling. So when we discussed the first topic, the integrated marketing communication, there we discussed 9 channels that can be used to communicate to your customers, and one of those was advertising, and another one of those media was personal selling. So today we will discuss personal selling, how it is different from the advertising, and what are the merits, demerits, and what are the things you need to consider while going for the personal selling. Okay, now let's go to our PPT without wasting further time. Personal selling. Here I have given the introduction of personal selling. Once upon a time, sales was 100% personal selling. So when these media were not there, television was not there, the radio was not there, the newspaper was not in the existence, then 100% of the sales was done through the personal selling. एक बंदा खुद जाकर कोई चीज बेचता था, तो पहले बार्टर सिस्टम होता था, वो भी एक पर्सनल सेलिंग का पार्ट था. यू यूज टू कम्युनिकेट टू द पीपल पर्सनली, फेस टू फेस. But now the sales are going through many technological changes. Now you don't need to meet a person who is selling. You don't need to be face to face. You can just click on the link. You can just select whatever you want to purchase, and that would be delivered to you. Okay, so there is a lack of personal touch, which was not there in the personal selling. But now, thanks to the globalization, advances in the technology, and the rising cost of travel, the personal selling is just one of many techniques available to the salesperson to warm up the lead and close a deal. That means there are many things available these days. You can visit a showroom, you can go for the online shopping, you can you don't need to go to a showroom either, और कभी कभी आपको e-commerce channel पे भी जाने की need नहीं. You just need to scroll to your Facebook account or Instagram, and there also you can do the shopping. There also you have the shop now button. So there are numerous ways to sell your product and purchase a product, and that is why personal selling is just out of many techniques available to the sales people. Okay, so personal selling पहले 100% होती थी, लेकिन अब इतने तरीके आ गए हैं सेलिंग करने के कि ये सिर्फ एक माध्यम बचा है बहुत सारे माध्यम से. ठीक है. Personal selling should be a part of wider sales mix alongside telesales, email marketing, sales promotion, advertising, public relations, etc. We discussed the sales mix. Okay, sales mix or the promotion mix. It talks about the way to communicate to the people. Okay, so personal selling is just out of them, and along with that we have the telesales where people talk over the phone and sell
a particular thing, like we receive so many calls for the credit cards, etc. So they could have come to my doorstep and convinced me, but now they are convincing me over the telephone. We have email marketing. We receive numerous emails where we have numerous discounts. We have the sales promotion. In sales promotion, I hope my PPT is still visible. In the sales promotion, you offer discounts, you give coupons, you give vouchers to your customers so that they can be attracted towards you. Then we have advertising, where you advertise your product over the internet, over television, over radio, and on other media as well. Then we have the public relation, where you meet people. You're not going to their homes, but when they are coming to your showroom, you meet people and you try to build a relation that would last longer. Okay, so these are some of the ways to communicate to your people, your customers. But personal selling must not be overlooked. It remains an extremely important part of salesperson's arsenal, and it is a skill every good salesperson must master. That means एक सेल्स पर्सन के लिए पर्सनल सेलिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब लोगों के घर जाकर उनको किसी प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है, so they are more likely to get affected rather than watching an advertisement or watching any publicity stunt. Okay, so sales person must be master इन द पर्सनल सेलिंग स्किल्स. यानी कोई भी सेल्स पर्सन है, उसको अच्छे से पता होना चाहिए कि पर्सनल सेलिंग में कैसे चीजों को बेचा जाता है. पर्सनल सेलिंग इज जस्ट आउट ऑफ मेनी स्किल्स यू शुड have in your sales toolbox. That means you need to have many skills, and personal selling is just one out of them, and it can be considered as one of the most important skills you should have. What is personal selling? Personal selling is when a salesperson meets a potential buyer or buyers face to face with the aim of selling a product or service. That means when you personally communicate to a person by meeting that person physically, phone पर नहीं, आप मिलकर फेस टू फेस होकर जब किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग इज एन एंशिएंट आर्ट. Effective salespersons have more than instinct. They are trained in a method of analysis and the customer management. That means पर्सनल सेलिंग, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सालों से पर्सनल सेलिंग चलती आई है. जब ये लैपटॉप्स नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे, टेलीविजन नहीं होते थे, तो पर्सनल सेलिंग ही की जाती थी. पीपल यूज्ड टू गो टू द डोर स्टेप्स ऑफ customers and used to sell their products. So it is one of the ancient art that has been there in the area of marketing. The effective sales persons have more than instinct. That means they do not just work upon their instinct कि मुझे लगता है कि लोगों को इस तरीके से persuade करना चाहिए, तो let's persuade them in this way. नहीं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है और किस तरीके से आपको प्रोडक्ट को बेचना है, कैसे आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना है, कैसे आपको सेल्स को क्लोज करना है, कौन कौन से डिस्काउंट्स देने हैं, कैसे उनको आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में बताना है. सो दे हैव टू बी ट्रेन्ड, एंड दे हैव टू बी ट्रेन्ड इन द एनालिसिस एंड द कस्टमर मैनेजमेंट.
Selling today is a profession that involves mastering and applying a whole set of principles. So selling is not just an easy task where you just need to go to the people and sell something. You have to be master in that, and you need to apply the whole set of principles. There are many rules and regulations regarding the personal selling, and you have to abide them in order to close the sales successfully. Okay, so that is the relevance of personal selling in our lives. Here we have given some definitions. Simply stated, the salesmanship means selling techniques. किस तरीके से सेल किया जाए उसको सेल्समैनशिप कहा जाता है. But the term is now used with a sense of greater significance. To understand the meaning of salesmanship in the modern marketing context, we give a few definitions. Here we have given few definitions of salesmanship and the personal selling. The salesmanship is not an attempt to induce people to buy goods, but it is the art of presenting and offering the prospect appreciates that the prospect appreciates the need for it. यानी सिर्फ चीजों को बेचना is not the salesmanship, बल्कि दूसरों को इस तरीके से कोई प्रोडक्ट प्रेजेंट करना ताकि उनको उस प्रोडक्ट की नीड फील होने लगे और वो सेटिस्फैक्टरीली आपसे वो प्रोडक्ट खरीद ले. ओके, सो सिर्फ बेचना इज नॉट द पर्पस, बट टू help them to appreciate our product, to feel the need of our product and to be satisfied from our product is the salesmanship. A face-to-face persuasive communication between a seller and the prospective buyer. So Daniel S. Warner has defined it in a simpler manner that it is a face-to-face persuasive communication. यानी face-to-face आमने सामने, persuasive यानी आप किसी को उत्तेजित कर रहे हैं किसी एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. कम्युनिकेशन दोनों के बीच में बातचीत बिटवीन अ सेलर, जो सेलर है सेल करने वाला है, और जो प्रोस्पेक्टिव बायर है जो आगे चल के बायर हो सकता है उसके बीच. Here we have given some more definitions. Give me a minute. ये क्लास 5th होगी आपकी, क्लास नंबर पे मत जाइए क्योंकि कुछ चीजें जो है वो हमने 2 क्लासेस में भी कवर की थी. तो जो मैंने आपको पीपीटीज दी हैं वो अभी तक सारी पीपीटीज जो कवर हो चुकी हैं सब कुछ है उसमें, लेकिन क्लास 1, 2, 3, 4 पर मत जाइए क्योंकि उसमें कुछ ऐसे स्लाइड्स हैं जो 2-3 दिन में कवर हुई थी. चलो दोबारा पीपीटी पर चलते हैं. Salesmanship is the process whereby the seller ascertains and activates the need or wants of the buyer and satisfies the needs or wants to the mutual continuous advantage of both the buyers and the sellers. यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सेलर डिसाइड करता है और एक्टिवेट करता है नीड्स और वांट्स को बायर की. यानी अभी तक आपको सपोज किसी प्रोडक्ट की नीड महसूस नहीं हो रही थी, कोई सेल्स पर्सन आया, सपोज आपके घर क्रेडिट कार्ड को बेचने वाले आए किसी बैंक से, तो वो आपको बताएंगे उसके फायदे, आपको अलग अलग स्कीम्स बताएंगे जिससे आपके अंदर उसके लिए एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप नीड क्रिएट करते हैं
ताकि दोनों को एडवांटेज हो सके, बायर को क्या फायदा है कि उसको कुछ सर्विसेज मिलेंगी और सेलर को क्या फायदा है कि उनका प्रोडक्ट बिकेगा। तो दिस इज सेल्समैनशिप। Salesmanship is the personal presentation of tangible or intangible products including ideas of commercial significance to potential buyers। यानी सेल्समैनशिप जो है वो एक पर्सनल प्रेजेंटेशन है टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स की। यानी कुछ तो टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं, अगर सर्फ बेचने आए हैं, मोबाइल बेचने आए हैं तो वो टेंजिबल प्रोडक्ट हो गए। कुछ इंटेंजिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, वो देखने में क्रेडिट कार्ड होगा लेकिन जो उसकी सर्विसेज होंगी वो इंटेंजिबल होंगी। तो सेल्समैनशिप में टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स दोनों इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग द आइडियाज ऑफ कमर्शियल सिग्निफिकेंस टू पोटेंशियल बायर्स। और कुछ आइडिया ऑफ कमर्शियल सिग्निफिकेंस होते हैं, यानी कुछ बेचने के आइडिया, कुछ इस तरीके की स्कीम्स होती हैं, जैसे LIC वाले आए वो आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं, या फिर एमवे वाले आए वो आपको डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए परस्यूएड कर रहे हैं। तो ये सब भी सेल्समैनशिप के अंडर आता है। It is a part of salesman's business to create demand by demonstrating the need does exist, although before his visit there was no consciousness of that need। यानी सेल्समैन का क्या बिजनेस है कि डिमांड को क्रिएट करना है। उस प्रोडक्ट के आने से पहले या उस सेल्समैन के आने से पहले उस प्रोडक्ट की नीड नहीं थी, लेकिन वो नीड क्रिएट की गई। Salesmanship consists of winning the buyer's confidence for the seller's house and goods, thereby arising a regular and permanent customer। सेल्समैनशिप में सेल्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बायर का कॉन्फिडेंस जीत सके। किसके बारे में कॉन्फिडेंस? एक तो सेलर्स हाउस का मतलब है उनका ब्रांड, ओके। तो सेलर के ब्रांड में और जो वो गुड बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दोनों के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करना ताकि वो उनका परमानेंट कस्टमर बन सके। सिर्फ एक बार की सेल करना इज नॉट द पर्पस, बट जस्ट टू मेक देम देयर परमानेंट कस्टमर। Now we'll discuss the objectives. The first objective is to enhance the sales volume of the different products of the company। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेल्स को बढ़ाना, किसी भी कंपनी की सेल्स को बढ़ाना इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग। सेकेंड है टू एंश्योर that there is a proper mix of products in the total sales volume। यानी टोटल जितने प्रोडक्ट्स बिकते हैं उसके प्रोडक्ट मिक्स को प्रॉपर देखना कि हर प्रोडक्ट के कुछ कुछ आइटम्स बिकें। ऐसा तो नहीं है कि मैं 10 प्रोडक्ट बेचती हूँ, सपोज डव इज माय कंपनी और मैं डव का शैम्पू और कंडीशनर और सोप, सपोज ये मेरा प्रोडक्ट मिक्स है, मैं तीनों चीज बेचती हूँ, तो मुझे ये देखना है कि तीनों चीज बिके। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सोप बिक रहा है या सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर बिक ही नहीं रहा। तो आई हैव टू मेक इट श्योर दैट प्रॉपर मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन द टोटल सेल्स वॉल्यूम इज बीइंग सोल्ड। The third objective is to ensure that the market share of the company is increased। यानी थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि सिर्फ सेल्स ही नहीं बढ़ानी, मुझे ये भी देखना है कि औरों के कंपैरिजन में और कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में मेरी सेल्स कितनी ज्यादा बढ़ रही है। थर्ड है टू एंश्योर दैट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी हैव इम्प्रूव्ड। यानी ये आपको देखना है कि
मार्केट शेयर के साथ साथ आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं या नहीं, आपको अपनी कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ाने हैं। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग डाउन और रिड्यूस द ओवरऑल सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। यानी सिर्फ प्रॉफिट मार्केट शेयर बढ़ाना ही काम नहीं है सेल्समैन का, उनको इस तरीके से भी सेल्स करनी है ताकि कंपनी के ओवरऑल सेल्स एक्सपेंसेस थोड़े कम हो सकें। सपोज आप एक टेरिटरी में जा रहे हैं, वहां जाने के आपको बहुत पैसा लग रहा है, बहुत पेट्रोल लग रहा है, तो आप कोशिश करो कि आज में वहां के सारे घर निपटा दो ताकि आपको दोबारा ना जाना पड़े और आपके सेल्स एक्सपेंसेस बचे। तो एक सेल्समैन का ये भी कर्तव्य है कि वो कंपनी के सेल्स एक्सपेंसेस को कम करे। The last objective is to gain new accounts and ensure that there is a growth of business। यानी सेल्स के साथ साथ उनको ये भी देखना है कि कुछ नए कस्टमर्स जो है वो भी हमारे एक्वायर हो ताकि कल को वो भी रेगुलर परचेजेस कर सकें आपसे। तो these are some of the objectives of personal selling। कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी हमने लिखे हैं यहाँ पर। The seventh objective is to that it helps in the appointment of dealers and expansion of distribution channel। तो सेल्समैनशिप जो है वो नए नए डीलर्स को अपॉइंट करने में हेल्प करती है, क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदने में तो आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, इससे आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो बड़ा होता है। नेक्स्ट है टू सिक्योर चैनल मेंबर्स कॉपरेशन इन स्टॉकिंग एज वेल एज सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। यानी यहाँ पे वो एक हिसाब रखते हैं कि कितना स्टॉक रखा जाए और कितना बेचा जाए, साथ साथ कितना सामान निकल सकता है और कितना स्टॉक करने की ज़रूरत है। तो सेल्समैनशिप का एक ये भी ऑब्जेक्टिव है कि आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा स्टॉकिंग भी ना की जाए, ज़्यादा वेयर हाउसिंग भी ना की जाए और शॉर्टेज ऑफ सप्लाई भी ना हो। नेक्स्ट इज टू अचीव द डिजायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। यानी आपको ये भी देखना है कि कितने कैश सेल हो रहे हैं, कितने क्रेडिट। ऐसा तो नहीं सारे ही क्रेडिट सेल हो रहे हैं, बाद में पैसा लेने में प्रॉब्लम होगी, या ऐसा तो नहीं सारे कैश सेल हो रहे हैं जिसका मतलब है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो खरीद ही नहीं रहे हैं। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर मिक्स ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड प्री सेल एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। जब कोई सेल्स पर्सन आता है तो आप उसको प्री सेल सर्विसेज के लिए भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको डेमोन्स्ट्रेशन देगा, बताएगा कि कैसे इसको खरीदना बेटर है और कैसे ये प्रोडक्ट आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट है आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी वो आपको ये भी एश्योरेंस देता है कि बाद में कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ जाती है तो ही वुड बी देयर टू असिस्ट यू। नेक्स्ट, टू ट्रेन द डीलर्स एंड कस्टमर्स। पर्सनल सेलिंग में जैसे कुछ तो सेलर्स होते हैं जो घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचते हैं और कुछ होते हैं जो शॉप्स पे जाकर बेचते हैं। जैसे सेल्स पर्सन आया, शॉप पर गया, शॉप पर इतना सामान बेचा और फिर वो शॉपकीपर आगे कस्टमर्स को देगा। तो सेल्समैनशिप का ये भी एक मोटिव है कि डीलर्स और कस्टमर्स को अच्छे से ट्रेनिंग मिले कि कैसे वो प्रोडक्ट यूज करना है। और लास्ट है टू असिस्ट एंड सपोर्ट अदर प्रमोशनल मेजर्स। यानी जब सेल्समैनशिप होती है तो वो बाकी के प्रमोशनल यानी एडवर्टाइजिंग को भी सपोर्ट करता है और पब्लिसिटी को भी सपोर्ट करता है, सेल्स प्रमोशन को भी असिस्ट करता है। तो जो बाकी के प्रमोशन मिक्स में एलिमेंट्स हैं, आईएमसी में जो और मिक्स में जो भी एलिमेंट्स थे उन सब में भी सेल्समैनशिप या पर्सनल सेलिंग आपको हेल्प करती है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं सेल्समैनशिप के या पर्सनल सेलिंग के। If you have any question, you can raise in the question and answer box.
पर्सनल सेलिंग आज ही तो मैंने स्टार्ट करा है, जैसे ही पर्सनल सेलिंग का टॉपिक हो जाएगा पीपीटी उसके बाद मिल जाएगी, अभी मैंने अपलोड नहीं की है। प्री सेल सर्विसेज एंड आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब है सेल होने से पहले की सर्विसेज, यानी अगर कोई प्रोडक्ट आपको बेचने आया है उससे पहले वो उसके फीचर्स बताएगा, आपको असिस्ट करेगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, वो होंगे प्री सेल सर्विसेज। और आफ्टर सेल सर्विसेज जब आप एक बार खरीद चुके हैं, सपोज आपने आज कोई प्रोडक्ट खरीद लिया है, कल उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपको यूज़ करना नहीं आता है, तो आफ्टर सेल भी वो आपको सर्विसेज देते हैं जिसमें वो खुद आकर आपको बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है या कैसे यूज़ करना है। वो है प्री सेल और आफ्टर सेल सर्विसेज। थर्ड और एट्थ ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जा रहा है। थर्ड है टू इंश्योर दैट द मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी इज इंक्रीज, यानी मार्केट शेयर क्या होता है कि सपोज दो कंपेटिटर है मार्केट में, एक सनसिल्क है शैम्पू और एक डव है, सपोज दो ही शैम्पू है पूरे मार्केट में, तो डव के पास अगर 50% शेयर है और सनसिल्क के पास भी 50% शेयर है, तो सेल्समैनशिप का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये 50 से 60, 70 या 80 किया जाए, यानी अपने मार्केट शेयर को बढ़ाया जाए ताकि लोग डव का ज़्यादा प्रोडक्ट ले सके और सनसिल्क का मार्केट शेयर कम हो जाए। ये तो थर्ड ऑब्जेक्टिव है। और एट्थ ऑब्जेक्टिव है टू सिक्योर चैनल मेंबर्स कॉपरेशन इन स्टॉकिंग एज वेल एज सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी, यानी जितने भी आपके चैनल मेंबर्स होते हैं जैसे रिटेलर, होलसेलर, तो उन सबको कॉपरेट करना होता है। सेल्समैन का काम होता है कि उन सब से कॉपरेट करके चले कि आपके पास कितना स्टॉक है, आपको नेक्स्ट वीक कितना चाहिए, इतने में काम चल जाएगा या नहीं, अगर कोई एक्सपायर डेट प्रोडक्ट हो गया तो उसको वापस ले जाना, तो ये सारा काम भी सेल्समैनशिप का होता है या सेल्समैन का होता है। Now let's talk about the stages of salesmanship. The first stage is provider stage. In this stage, the available offerings of the supplier are placed before the buyer for the purpose of selling. यानी पहले तो जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, एक सेल्समैन है, उसको किसी के घर जाके कुछ प्रोडक्ट बेचना है, तो सबसे पहले तो वो प्रोडक्ट दिखाएगा कि वो क्या बेचने आया है। फर्स्ट स्टेज। देन सेकंड स्टेज परसुएडर स्टेज। परसुएडर स्टेज मतलब अब वहां पे थोड़ा थोड़ा वो परस्यू करने लगेगा कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए।
So it is the process to pursue the selling process to the prospective market members. यानी जो भी बंदा खरीदने वाला है, चाहे वो कोई रिटेलर है या होलसेलर है या फिर कस्टमर है, उसको आप सेलिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे, यानी शुरू हो जाएंगे कि ये क्यों खरीदना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं। फिर है प्रोस्पेक्टर स्टेज। Prospector stage में, in this stage the prospective buyer's need is to be identified and the relevant goods and services offered as per the requirement। यानी आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ सेल्समैन जो होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, आप किस तरीके का प्रोडक्ट चाहते हैं। फिर आप बताते हैं कि भाई हमें तो इस तरीके का चाहिए, ऐसा चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप जानने के बाद कि उनकी कैसी नीड है, उनकी कैसी पसंद है, आप उनको प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। तो वो होता है प्रोस्पेक्टर स्टेज। देन फोर्थ स्टेज, प्रॉब्लम सॉल्वर स्टेज। इन पर्सनल सेलिंग, सेल्स पर्सन should act as the facilitator to solve the problem of the buyer in the specific area and should suggest the best solution through the offerings and corresponding with the needs। यानी कभी कभी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है कि ये प्रोडक्ट मैं इसीलिए नहीं खरीद सकती क्योंकि ये प्रॉब्लम है, हमें तो ये करना है, ऐसे नहीं चलता, ये है ये है ये है। तो आप इस स्टेज में उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप वॉशिंग मशीन बेचने गए हैं और सामने से वो कहते हैं कि भाई हम वॉशिंग मशीन नहीं लेना चाहते क्योंकि उसमें वाइट कपड़े जो हैं वो अच्छे से नहीं धुल पाते या उसके दाग नहीं जा पाते। तो आप यहाँ पे अब सल्यूशन दोगे, आप ये बताओगे कि ठीक है, अगर आपको वॉशिंग मशीन के बारे में ये मिथ है तो आप इसमें गर्म पानी डालिए, या आप ये वाला सर्फ यूज कीजिए, या फिर आप इस मोड पे यूज कीजिए ताकि आपके कपड़े ज्यादा अच्छे से धुलें। तो वो प्रॉब्लम सॉल्वर स्टेज है, जब आपके कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है और उसका सल्यूशन आप दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज है प्रोक्रिएटर स्टेज। बायर सेलर इंटरेक्शन should generate an understanding and offering may be regenerated in tailor-made fashion to match the specific need। यानी यहाँ पर जो कस्टमर है वो भी क्रिएटर बन जाता है। क्रिएटर का क्या मतलब है कि वो भी आपको बताता है कि इस तरीके का प्रोडक्ट उनको चाहिए। तो हो सकता है कि आपके पास रेडिली अवेलेबल ना हो वो प्रोडक्ट, लेकिन आप उनको कहें कि हम 3-4 दिन में आपकी नीड के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट आपको बनाकर दे सकते हैं। सपोज कोई लैपटॉप बेचने आया है मेरे घर और मैं उनको बताती हूँ कि मुझे ये स्पेसिफिकेशन चाहिए कि इतना SSD होना चाहिए, इतना हार्ड डिस्क होना चाहिए, इतना रैम होना चाहिए। सपोज वैसा लैपटॉप उनके पास अवेलेबल नहीं है तो वो मुझे कहते हैं कि आप हमें 1 महीने का टाइम दीजिए और हम आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको लैपटॉप टेलर करके देंगे, यानी बना कर देंगे। तो वो होता है प्रोक्रिएटर स्टेज। तो वो लास्ट स्टेज आती है। Is there any question from any of the stages? निशिका, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है, मुझे कोई बुक नहीं मिली है जो हिंदी में अवेलेबल हो, सो आई कैन नॉट हेल्प यू। फर्स्ट एक बार सारी स्टेज दोबारा बता दो।
first stage is provider stage. In this stage the available offerings of the supplier are placed before. यानी यहाँ पे सिर्फ आप प्रोडक्ट दिखाते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट हम बेचने आए। अगर लोग वहीं पे कह देते हैं कि हाँ भाई हमें खरीदना मन बना चुके थे कि ये लैपटॉप खरीदना है और आज ही उनके सेल्स पीपल आ गए अच्छी डिस्काउंट लेके, तो आपने तो माइंड पहले से बना रखा है, तो जैसे ही वो प्रोडक्ट दिखाएंगे आप खरीद लेंगे। तो प्रोवाइडर स्टेज यहाँ से आगे करना पड़ेगा। परचेज में उसकी के अंदर क्रिएट की जाएगी नीड। पहले तो आप नीड को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि अच्छा या थर्ड स्टेज है जिसमें आप नीड को पहचान नीड या मेरा माइक म्यूट था। थर्ड स्टेज में आप नीड को जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट दे एक्चुअली वांट फ्रॉम यू। किसी को किसी पर्पस के लिए लैपटॉप लेना है, किसी को सिर्फ क्लासेस के लिए लेना है, किसी को हैवी सॉफ्टवेयर्स डालने हैं तो उनको गेमिंग लैपटॉप की नीड है। तो इस तरीके से आप उनकी नीड को जानने की कोशिश करते हैं, प्रोस्पेक्टर स्टेज। फोर्थ स्टेज में आप उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज मैं कहती हूँ कि मुझे हैवी सॉफ्टवेयर्स चाहिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं तो मुझे रैम ज़्यादा चाहिए अपने लैपटॉप की, तो आप उसके सॉल्यूशन देते हैं मुझे कि मैम आप ये वाला लैपटॉप देख लीजिए, इसमें ज़्यादा रैम है, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी। यानी ये है प्रॉब्लम सॉल्वर स्टेज। और फिर लास्ट में आती है प्रो क्रिएटर स्टेज, जिसमें अगर आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप उस तरीके का प्रोडक्ट जैसा मैं चाहती हूँ वैसा मुझे बनाकर देते हैं। तो ये पांचों स्टेज मैंने रिपीट की है। स्टिल अगर कोई डाउट है तो यू कैन टाइप देयर। अब मेरी आवाज आ रही है क्लियर? अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। What are the responsibilities of a personal selling person या फिर salesman? The first responsibility is to locate prospective customers. That means आपको पहले ये देखना है कि कौन लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, कौन कौन आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे। लोकेट प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, कौन कौन आपके कस्टमर बन सकते हैं, उनको लोकेट किया जाए। सेकेंड है आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स। फिर ये जानो कि वो आपसे क्या चाहते हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उनकी नीड्स एंड वांट्स हैं। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्समैन की है। थर्ड, counseling the prospects and suggesting the possible solution of the problems.
यानी कभी कभी हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, उनकी नीड्स एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, तो हमें उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है और उनकी प्रॉब्लम के सल्यूशंस देने होते हैं जो पॉसिबल सल्यूशन है। सपोज मैं कहती हूँ कि मुझे 15 या 16 GB की रैम चाहिए अपने कंप्यूटर में, तो वो मुझे कहेंगे कि इतनी पॉसिबल नहीं है इतनी रेंज में। फिर वो थोड़े सल्यूशन बताएंगे कि आप इस रेंज में ये वाला ले सकते हैं, इसमें भी आपको ऐसे ही फीचर मिलेंगे। तो जब वो काउंसलिंग करते हैं, सजेस्ट करते हैं मेरी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल्समैन की। नेक्स्ट है सिक्योरिंग एंड मेंटेनिंग द कस्टमर्स कॉपरेशन इन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट लाइन। यानी आपको कस्टमर का कॉपरेशन चाहिए। जब आप उनको लैपटॉप के बारे में बता रहे हैं तो कस्टमर भी आपके साथ कॉपरेट करना चाहिए, यानी वो आपकी सारी बातें समझना चाहिए। वो बाद में प्रोडक्ट को खरीदता है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन ही शुड बी सेटिस्फाइड फ्रॉम योर परफॉर्मेंस कि आपने उनको सब कुछ सही सही बताया है, और आगे वो भी इस चीज़ को प्रमोट करेंगे। अगर वो पसंद करेंगे तो वो किसी और को भी जाकर कहेंगे कि आप उस शॉप से लाइए, वो अच्छे से समझाते हैं। या अगर आप उनके कोई आपके घर पर आया है तो आप किसी और के घर पे भी भेजेंगे कि ये प्रोडक्ट आप उधर भी भेजिए। नेक्स्ट, informing customers regarding the changes in the product line and other strategies। आपको कस्टमर्स को प्रोडक्ट में कोई भी चेंज आ रहा है या आप कोई नई तरीके के प्रोडक्ट को लाने जा रहे हैं तो आपको वो सारी चीज़ों के बारे में भी अपने कस्टमर को बताना है। जैसे कि अगर आपको पता है कि उसका वेट कम हो गया है प्रोडक्ट का, या उसके प्राइसेस में चेंज आ गया है, तो आप पहले ही अपने कस्टमर को बताकर चलेंगे। और नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है असिस्टिंग कस्टमर्स बाय गिविंग एडवाइस रिगार्डिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट। यानी कुछ चीज़ें टेक्निकल होती हैं जो नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आती। जैसे कि कितना SSD होना चाहिए, उसका क्या फ़ायदा होता है, और ग्राफिक कार्ड है या नहीं है आपके लैपटॉप में। तो ये सारी चीज़ें कुछ टेक्निकल होती हैं कि भाई जनरेशन 5 में क्या फ़ायदे हैं और i5 के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके कस्टमर को नहीं पता है, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, तो वो भी आपको बताना होता है कि उसके ये फ़ायदे हैं और ये टेक्निकल टर्म इस चीज़ को रेफ़र करती है। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके सेल्समैन की। और कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमने लिस्ट डाउन की हैं। 7th रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। यानी कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप मैनेजमेंट को उसके बारे में बताएंगे। सपोज आज मैं किसी के घर गई लैपटॉप बेचने, मुझे पता चला कि लोगों को ये रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीज़ें जाके मैं खुद मैनेजमेंट को बताऊंगी ताकि वो इस तरीके के लैपटॉप बना सकें। एनालाइजिंग द मार्केट पोटेंशियल, यानी उस प्रोडक्ट की कितनी नीड है मार्केट में, कितने लोग उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, वो सारा मार्केट पोटेंशियल भी मैं एनालाइज करूंगी। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैप्चरिंग एंड रिटेनिंग द सर्टेन मार्केट शेयर। यानी नया मार्केट शेयर तो बनाना ही है मुझे, जैसे 50% था तो 60 तो करना ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो 50 है उसको भी मेंटेन करना है, उसको भी रिटेन करना है। तो मार्केट शेयर को रिटेन करना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा ना हो कि वो किसी और के पास चला जाए मार्केट शेयर। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट एंड द स्पेशल फीचर्स। यानी जो सेल्समैन है उसको पता होना चाहिए कि वो कैसे यूज़ होता है और वो यूज़ करके दिखा सके कस्टमर्स को, और उसके जो स्पेशल फीचर्स हैं वो भी एक्सप्लेन कर सके। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्वायरिंग द प्रॉस्पेक्ट्स कमिटमेंट एंड क्लोजिंग द सेल्स। यानी जब आप किसी को बेच रहे हैं कोई प्रोडक्ट, तो
उसका कमिटमेंट लेना ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा ना कि वो कहते हैं कि आपका ये पैक कर दें ना, ये जल्दी से पैक कर दें, कितने कितने में डील से करेंगे, आप कब खरीदेंगे, आप कैश ऑन डिलीवरी देंगे या फिर आप अभी क्रेडिट कार्ड से सेल करेंगे, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे या कैश पेमेंट करेंगे। उसका मतलब होता है वो कमिटमेंट ले रहे हैं कि आप वो खरीदना चाहते हैं और फाइनली क्लोज करना चाहते हैं सेल को। और लास्ट है मेंटेनिंग कस्टमर्स लॉयल्टी थ्रू फॉलो अप एंड आफ्टर सेल। और कस्टमर लॉयल कब बनता है? वो लॉयल जब बनता है जब आप उससे अच्छे से फॉलो अप करते हैं। एक बार बेच के भूल गए तो कोई भी आपसे दोबारा प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहेगा। तो इसीलिए आपको फॉलो अप करना ज़रूरी है कि वो ठीक चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। और आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो एक सेल्समैन में होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको ये निभानी चाहिए। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया? पॉइंट 10 एंड 11 की को रिपीट करने को कह रहे हैं बच्चे और 6th को। लेट मी गो बैक। 6th पॉइंट, असिस्टिंग कस्टमर्स बाय गिविंग एडवाइस रिगार्डिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट, यानी हर एक कस्टमर को टेक्निकल नॉलेज हो आपके प्रोडक्ट की वो ज़रूरी नहीं। तो आप उनको उलझा देंगे टेक्निकल टर्म्स में, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए उनको टेक्निकल एस्पेक्ट में भी असिस्ट करना ज़रूरी है कि इस टेक्निकल टर्म का क्या मतलब होता है। सपोज मैं आपको कहती हूँ कि ये लैपटॉप आपको खरीदना चाहिए बिकॉज इट इज़ यूजिंग द जनरेशन 5 या फिर इसमें ग्राफिक कार्ड है। तो अब आप कहेंगे कि भाई मुझे तो नहीं पता ग्राफिक कार्ड का क्या फ़ायदा है क्या, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि उससे पिक्चर्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर आती हैं या फिर ग्राफिक्स, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिलता है, इस तरीके के कोर्सेज में इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स को वो सपोर्ट करता है। तो मैं आपको टेक्निकल नॉलेज दे रही हूँ, तो वो ज़रूरी है देना। 10th और 11th, डेमोन्स्ट्रेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट एंड द स्पेशल फीचर्स, यानी आपको जो लैपटॉप में अगर बेच रही हूँ तो मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी कि अगर आपको क्लासेस लेनी है तो देखिए ऐसे कैमरा ऑन होगा, ऐसे आप क्लासेस ले सकते हैं, इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी, डेमो दूंगी आपको। और नेक्स्ट पॉइंट है 11th, एक्वायरिंग द प्रोस्पेक्ट्स कमिटमेंट, यानी आपको कमिटमेंट लेना है कस्टमर से कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा ही खरीदेगा। तो आप ये कर सकते हो कि एडवांस पेमेंट ले लो, कह दो कि भाई अभी आज ही लोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 500 रुपये का, 1000 रुपये का। तो ये होता है प्रोस्पेक्ट का कमिटमेंट लेना कि हाँ भाई आपसे ही प्रोडक्ट खरीदा जाएगा। तो वो जितनी जल्दी अगर कमिटमेंट ले लेते हैं उतना अच्छा है।
8th पॉइंट, एनालाइजिंग द मार्केट पोटेंशियल, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की कितनी नीड हो सकती है उसको एनालाइज करना कहलाता है एनालाइजिंग द मार्केट पोटेंशियल, कि लोग कितना आपके प्रोडक्ट को सराहेंगे, कितना पसंद करेंगे, कितना खरीदेंगे। Now let's talk about the importance. Promotional mix or the marketing communication mix includes the personal selling and non-personal selling. यानी जो promotional mix होता है वो मैंने आपको बताया कि कुछ पर्सनल सेलिंग होती है, कुछ नॉन पर्सनल होती है, जैसे एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी, वो नॉन पर्सनल होती है, लोग खुद जाके तो नहीं करते उसमें। पर्सनल सेलिंग यूजेस सेल्समैनशिप टेक्निक्स which is the ability to influence the prospective buyers to buy a good or the service which otherwise they would not bring or postpone. यानी पर्सनल सेलिंग में यूजुअली ऐसे प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है या इस तरीके से लोगों को परस्यू किया जाता है कि वो अगर खुद उनको लेना होगा जाके मार्केट में तो शायद ना लें या फिर बाद में लें, और उनमें नीड क्रिएट करने के लिए अभी के अभी बेचने के लिए उनको उनके घर पर जाकर उनके दरवाजे पे ये बेचा जाता है। तो पर्सनल सेलिंग में क्या है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए अभी के अभी। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंस दी गई है। पर्सनल सेलिंग इज ओरल कम्युनिकेशन विद पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग द सेल डील। यानी आप किसी भी पोटेंशियल बायर से ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, रिटन तो नहीं होता, आकर वो बोलते ही हैं, तो ओरल कम्युनिकेशन होता है ताकि वो सेल को क्लोज कर पाए, वो उस प्रोडक्ट को बेच पाए। पर्सनल सेलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर मीटिंग द प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने का। Personal selling occurs when an individual salesperson sells a product, service or a solution to a client. इसमें कुछ explain करने वाला नहीं है। No activity is more vital to the company's health than the personal selling. यानी personal selling जो है कंपनी के लिए बहुत important है, क्योंकि उसमें आप लोगों को जानते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं और फिर आप उन प्रोडक्ट को उनके चाहत के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा ना दिखे, ऐसा दिखे, इस तरीके का पैकिंग हो, तो वो आपको रियल टाइम बेसिस पे फीडबैक मिल जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। नेक्स्ट, पर्सनल सेलिंग enables a person to confront new challenges almost every year. तो कोई भी एक सेल्समैन होता है वो हमेशा उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है, तो हर साल उनको नए नए चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। सिक्स्थ है, फॉर अ सेल्स पर्सन एवरी डे इज अ न्यू एडवेंचर। ऑफ कोर्स, वर्किंग इन सेलिंग प्रोफेशन वन कैन गो फ्रॉम the height of exhalation to the depth of the discouragement within 48 hours and climb back to the height again next day. This is really exciting. That means कि आप जब सेलिंग प्रोफेशन में होते हो तो हो सकता है एक दिन आपकी बहुत ज़्यादा सेल हो जाए, आपको बहुत अच्छा लगे, दूसरे दिन आपकी बिल्कुल भी सेल ना हो, आपको अच्छा ना लगे। तो ये भी इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। एट्थ, इम्पोर्टेंस टू मैनेजमेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंस है? इन दिस एज ऑफ ग्रोइंग कॉम्पिटिशन, सेल्स पर्सन कैन इफेक्ट लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेल एंड मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट बीइंग स्मॉल, द लार्ज सेल्स वॉल्यूम विल कीप द फर्म प्रॉफिटेबल। यानी यहाँ पे कभी कभी मार्जिन थोड़ा कम होता है क्योंकि सेल्स पर्सन जाते हैं, उनके भी पेट्रोल का खर्चा आता है, उनके ऊपर भी खाने पीने का खर्चा होता है, तो थोड़े प्रॉफिट कम होते हैं, लेकिन ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेल क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि जब घरों में जाकर परसू करते हैं लोगों को तो वो ले लेते हैं सामान। तो जब लार्ज वॉल्यूम होएगी तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट क्रिएट होगा ही।
नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस टू द कस्टमर. Salesperson educate and guide the customers for product features and application which gives the customer more satisfaction. किसी चीज़ की ad देख के हो सकता है मुझे उसके product के फीचर्स और फंक्शन समझ ना आए, लेकिन अगर कोई सेल्स पर्सन घर पे बेचने आया तो वो उसको यूज़ करके मेरे सामने बता सकता है, मुझे कोई डाउट है तो साथ के साथ क्लियर कर सकता है, जिसकी वजह से कस्टमर्स के लिए भी बहुत अच्छा है. और नेक्स्ट है सेल्समैन इज क्रिएटिव अप्रोच. इट कैन क्रिएट नीड्स एंड कन्वर्ट्स द नीड्स इनटू वांट्स. यानी ये क्रिएटिव अप्रोच है, लोगों को ज़रूरत तो होती है उस प्रोडक्ट की लेकिन वो समझ नहीं पाते, तो सेल्स पर्सन उनको हेल्प करते हैं वो समझने में कि हाँ दे रियली वांट दिस प्रोडक्ट. So these are the importance of salesmanship. I'm not audible. Am I audible now? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि यू आर नॉट ऑडिबल, कुछ कह रहे हैं ऑडिबल हूँ. फिफ्थ एंड फोर्थ इम्पोर्टेंस मैं दोबारा बता देती हूँ. फिफ्थ है पर्सनल सेलिंग इनेबल्स अ पर्सन टू कन्फ्रंट न्यू चैलेंजेस ऑलमोस्ट एवरी डे. यानी कोई भी सेल्स पर्सन होता है उसको हर साल वो एक ही तरीके से एक प्रोडक्ट को हर साल नहीं बेच सकता, उसको नए नए तरीके सोचने पड़ते हैं हर साल. तो न्यू चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनको न्यू टेक्निक्स अपनानी पड़ती हैं हर साल उस सेम प्रोडक्ट को बेचने के लिए. दूसरा है फोर्थ पॉइंट है नो एक्टिविटी इज मोर वाइटल टू द कंपनीज हेल्थ दैन द पर्सनल सेलिंग. यानी कोई और कंपनी कोई और एक्टिविटी कंपनी के लिए इतनी फायदेमंद नहीं होती या इतनी ज़रूरी नहीं होती जितनी पर्सनल सेलिंग होती है, क्योंकि पर्सनल सेलिंग में आप लोगों से वन टू वन कनेक्ट करते हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो जान सकते हैं. हालांकि सारी ही एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट होती है, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैजरेट करके लिखा हुआ है कि इसके अलावा कोई और इम्पॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन सारी ही एक्टिविटीज इम्पॉर्टेंट होती हैं. यू कैन नॉट कंपेयर देम. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. What is the role of salesmanship? Personal selling program should concentrate on the following issues. First is specific information to be exchanged between the organization and the prospects. यानी सबसे पहले तो उन्हें ये देखना है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है
प्रोडक्ट के बारे में जो हर कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए। ये उस रिगार्डिंग उसके फंक्शंस हो सकती है, उसके फीचर्स के रिगार्डिंग हो सकती है, उसके अपीयरेंस के रिगार्डिंग हो सकती है, लेकिन वो एक आउटलाइन बनाई जाती है, वो बताया जाता है कि हर सेल्समैन को ये फीचर्स के बारे में अपने कस्टमर को बताना है, ये फंक्शंस के बारे में बताना है, इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है। तो ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन और प्रोस्पेक्ट्स हैं जो लोग खरीदना चाहते हैं या खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, उनके बीच में ये एक्सचेंज होना चाहिए इंफॉर्मेशन का। एक तो ये रोल है। सेकंड है determination of different alternative means of communication for the purpose of fulfilling the objectives। यानी सेल्समैनशिप के अलावा और कौन कौन से ऐसे कम्युनिकेशन के माध्यम हो सकते हैं जिससे लोगों तक पहुंचा जा सके। जैसे अगर सेल्समैन आया है आपके घर पे और अगर आप एडवर्टीजमेंट भी देख चुके हैं उस प्रोडक्ट की, तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस होंगे। तो इसीलिए बाकी के ऑल्टरनेटिव मीन्स पे ध्यान देना भी ज़रूरी है, सिर्फ एक ही के भरोसे रहकर आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव एंड इट्स कॉस्ट इम्प्लीकेशन। यानी तीसरा रोल है कि सेल्समैन को हर एक एक्टिविटी की इफेक्टिवनेस का अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है कि अगर आप इस एरिया में जाएंगे तो सपोज 100 घरों में जाएंगे, उसमें से 10 लोग ही खरीद पाएंगे, तो यानी आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। अगर आप दूसरे एरिया में जाएंगे, वहाँ 50 घरों में से 40 घर खरीद पाएंगे, तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट कम आएगी। तो इस तरीके का एस्टिमेशन लगाना भी सेल्समैन के लिए ज़रूरी है, या पर्सनल सेलिंग प्रोग्राम में ये एस्टिमेशन लगाना ज़रूरी है। और नेक्स्ट है इट इज़ द रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग टू फुलफिल द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स फॉर द पर्पस ऑफ conveying various messages designed by the organization। यानी ये भी पर्सनल सेलिंग प्रोग्राम का रोल है कि उनको अलग अलग तरीके के मैसेजेस को जो ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किए हैं वो कन्वे करने हैं लोगों को, सिर्फ कस्टमर्स को ही नहीं बल्कि बाकी के सेलर्स, रिटेलर्स और होलसेलर्स को भी। तो ये कुछ रोल है जो एक पर्सनल सेलिंग प्रोग्राम के अंडर आते हैं। दो मिनट का ब्रेक दे रही हूँ और फिर हम आगे के टॉपिक करेंगे।
चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। यहाँ पे हमने कुछ और ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं पर्सनल सेलिंग के। फर्स्ट इज टू क्रिएट अवेयरनेस, उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाना। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रोडक्ट बेनिफिट्स, उस प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करना यानी उसका डेमो देना। नेक्स्ट है आंसरिंग द क्वेरीज, सामने वाला पर्सन कस्टमर अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर देना। नेक्स्ट, काउंटरिंग द मिसकंसेप्शंस, यानी कभी कभी कस्टमर्स के माइंड में कुछ अवधारणाएं होती हैं, मिसकंसेप्शंस होते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको वॉशिंग मशीन का बताया था कि कुछ कस्टमर्स को लगता है कि इसमें कपड़े ज़्यादा अच्छे से नहीं धुल पाते, तो उनके मिसकंसेप्शंस को काउंटर करना यानी उसको करेक्ट करना कि ऐसा नहीं है, ये पहले लोगों की सोच थी कि उसमें अच्छे से नहीं धुलते हैं, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है और बहुत अच्छे से कपड़े धुलते हैं। तो वो है काउंटरिंग मिसकंसेप्शंस। नेक्स्ट है अनअर्थिंग द पोटेंशियल इनर नीड्स, यानी कभी कभी कस्टमर को खुद नहीं पता होता कि उनको इस प्रोडक्ट की नीड है, तो घर पर आकर उनको समझाकर और फिर बताया जाए कि आपको इस चीज़ की क्यों नीड है। जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी, लोगों को लगता है क्यों इंश्योरेंस लेना, पर उन्हें समझाया जाए कि ये फ़ायदे हैं, ज़रूरी नहीं है कि कल को कोई भी ऐसे मिस हैपनिंग हो सकती है। तो जब आप लोगों को समझाकर उनके अंदर इनर नीड क्रिएट करते हैं, वो भी एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है पुशिंग द प्रोडक्ट थ्रू द चैनल्स, यानी सिर्फ कस्टमर को नहीं, आप रिटेलर्स को और उसको भी जाकर डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट आप खरीदिए, फिर उनको सप्लाई दी जाती है काफ़ी सारे प्रोडक्ट की। तो आप चैनल्स के थ्रू पुश कर रहे हैं ताकि वो फाइनल कस्टमर तक पहुंच पाए। और नेक्स्ट है प्राइस नेगोशिएशन बिटवीन द बायर एंड सेलर, यानी कहीं ना कहीं आपको प्राइस नेगोशिएशन करना पड़ता है कि ठीक है सामने वाला थोड़ा बार्गेन करता है, तो कितना बार्गेन आपको अलाउड है उसके हिसाब से आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। पहले भी हमने कुछ ऑब्जेक्टिव किए थे, यहाँ पे थोड़े और ऑब्जेक्टिव्स कंसाइज वे में दिए हैं, है तो सारे वही पॉइंट लेकिन यहाँ पे थोड़े से पॉइंटर फॉर्म्स में दिए हैं। इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स, यानी अब सेल्समैन ने सेल्स कर दी है, अब आप कैसे उसको इवैल्यूएट करेंगे, यानी आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका पर्सनल सेलिंग प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसके कुछ तरीके दिए गए हैं। फर्स्ट इज मार्केट इंटेलिजेंस एंड फॉलो अप। The sales force should be equipped with the ability to procure the feedback information regarding the market trends, competitive activities, reaction of the customers. यानी फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। एक बार कोई प्रोडक्ट बेच दिया, उसके बाद फॉलो अप करो कि वो प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आया या नहीं आया, क्या रिएक्शन रहा, क्या कोई और भी है जो प्रोडक्ट सेम तरीके का प्रोडक्ट कोई और कंपनी बेच रही है, ऐसा तो नहीं लोग उनसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, ऐसा तो नहीं कि मार्केट में कोई और ट्रेंड चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको फीडबैक से पता चलेंगी। तो फीडबैक करना, फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। सेल्स फोर्स शुड इन्फॉर्म द एग्जिस्टिंग and the new customers relevant information regarding the promotional activity। और हर एक बंदे को, हर एक सेल्समैन को अपने कस्टमर्स को, जो नए कस्टमर्स हैं उनको अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन स्कीम ऑफ प्रोग्राम। The sales effort should be judged and assessed on the basis of effective implementation made through the different activities
like presentation schemes, demonstration schemes, customer relationship program etc. यानी कुछ ऐसी स्कीम होती हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो पर्सनल सेलिंग का प्रोग्राम है, वो ठीक जा रहा है या नहीं। तो वो किस तरीके से हो सकता है कि हम सेल्समैन को कह सकते हैं कि हमें प्रेजेंटेशन देकर दिखाओ, हमें डेमोन्स्ट्रेशन देकर दिखाओ, या फिर कस्टमर से कैसे आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हैं वो करके दिखाओ। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि जो आपने सोचा है आपके कस्टमर्स तक जिस तरीके की इंफॉर्मेशन आप पहुंचाना चाहते हैं और जिस तरीके से पहुंचाना चाहते हैं वैसे पहुंच रही है या नहीं। तो ये हम प्रेजेंटेशन स्कीम, डेमोन्स्ट्रेशन स्कीम कुछ लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। The effectiveness of personal selling effort is judged by the attainment of communication objective and she's result. Sales efforts should consist of sales calls, sales expenses, customer services, sales related activities. Sales result may be judged through the number of orders, sales profit margin and selling skills. यानी फाइनली आप अपना मैसेज कस्टमर तक पहुंचा पाए या नहीं पहुंचा पाए, वो कैसे पता चलेगा? जब आपकी सेल्स बढ़ेगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा होंगे या फिर नंबर ऑफ क्वेरी ज़्यादा होंगी, लोग इंक्वायरी ज़्यादा करेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपका कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव मीट हुआ या नहीं। तो इस तरीके से आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपकी पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स जो हैं या आपका जो पर्सनल सेलिंग प्रोग्राम है वो सही चल रहा है या नहीं, क्या वो रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजिंग मैं आपको बता ही चुकी हूँ, पहले काफ़ी क्लासेस हमने एडवर्टाइजिंग पे पढ़ी हैं कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है। पर्सनल सेलिंग हमने आज पढ़ा है कि क्या होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस दिए गए हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। द फर्स्ट basis for the distinction is nature. एडवर्टाइजिंग में इम्पर्सनल होता है, कोई पर्सनली आके एडवर्टाइजमेंट थोड़ी देता है आपको आपके घर पे आके, तो वो इम्पर्सनल होता है। पर्सनल सेलिंग में पर्सनल फॉर्म होता है। रीच, एडवर्टाइजिंग का रीच ज़्यादा होता है क्योंकि वो टेलीविज़न पे आई है तो पूरे एरिया के, पूरे नेशनल टेलीविज़न पे आ जाएगी, वाइड एरिया कवरेज है। पर्सनल सेलिंग में आप घर घर जाकर सेलिंग करते हैं तो एक लिमिटेड एरिया होता है। नेक्स्ट, कॉस्ट पर पर्सन रीच्ड इज लो। अब एक टेलीविज़न बनाई और वो इतने सारे लोगों तक एक एडवर्टीजमेंट टेलीविज़न पे बनाई और वो इतने सारे लोगों तक एक बार में पहुंच गई, तो उसकी जो कॉस्ट पर पर्सन है, वैसे तो महंगा होता है वो, लेकिन पर पर्सन निकालते हैं जब डिवाइड कर देते हैं पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन से, तो वो लो आ जाता है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में आप बहुत एफर्ट्स करते हैं, एक एक बंदा जाके एक एक बंदे को परस्यू करता है, तो उसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो होती है पर पर्सन वो हाई होती है। नेक्स्ट है मीडिया यूज्ड। एडवर्टाइजिंग में कौन सा मीडिया यूज होता है? टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन और बहुत सारे जो हमने कल सारे पढ़े थे। पर्सनल सेलिंग में सेल्स पर्सन टू कॉन्टैक्ट प्रोस्पेक्टिव बायर्स पर्सनली, यानी यहाँ पे सेल्स पर्सन को कस्टमर के पास पर्सनली जाना पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी, एडवर्टाइजिंग में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये इनफ्लेक्सिबल है। द मैसेज कैन नॉट बी एडजस्टेड टू द नीड्स ऑफ द बायर्स, यानी अब ऐसा तो नहीं है टेलीविजन पे मेरे को अलग, टीवी में ऐड दिखाई देगी आपको अलग, जो आपको दिखेगा वही मुझे दिखेगा, तो फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में हो सकता है मेरी अलग नीड हो
तो जो सेल्स पर्सन है वो अलग तरीके से मुझे डेमोन्स्ट्रेट करे, और आपकी अलग नीड हो तो आपको अलग तरीके से प्रोडक्ट दिखाए। तो ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है। टाइम एंड कवरेज, एडवर्टाइजिंग जो है वो कम टाइम में ज़्यादा कवरेज कर लेती है। 10 सेकेंड की एड थी, सबको 10 सेकेंड में पूरे इंडिया में ऑन एयर हो गई। लेकिन पर्सनल सेलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक बड़े एरिया को कवर करने में। रोल, क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग इंटरेस्ट अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट, यानी एडवर्टाइजिंग का क्या रोल है कि लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करना फर्म के प्रोडक्ट में। पर्सनल सेलिंग का क्या रोल है? इम्पॉर्टेंट रोल इन अवेयरनेस स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बताना, अवेयर कराने में ज़्यादा फायदेमंद है पर्सनल सेलिंग। सुटेबिलिटी, एडवर्टाइजिंग यूजफुल इन रीचिंग टू द लार्ज नंबर ऑफ अल्टीमेट कस्टमर्स, ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए फायदेमंद है। और सेलिंग, पर्सनल सेलिंग में सेलिंग प्रोडक्ट्स टू द इंडस्ट्रियल यूजर्स इंटरमीडिएरीज हु आर फ्यू इन नंबर्स, तो कस्टमर्स तक ना पहुंचने कर अगर आप ये रिटेलर्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद है कि हर दुकान पे जाके रिटेलर को डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाए कि ये प्रोडक्ट है, ताकि वो आगे और कस्टमर्स को बेच पाए। तो ये इस तरीके के केसेस में ज़्यादा फायदेमंद है। So here we are done with the difference between the advertising and the personal selling. Now let me come back to your screen for the questions. कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? जब एक ही एड बनी हुई है, सपोज महंगी बनी है लेकिन वो 1000 लोगों को केटर कर रही है, तो कॉस्ट पर पर्सन बहुत कम हो जाएगा। लेकिन जब पर्सनल सेलिंग में हम हर बंदे को घर घर भेज के सामान को बिकवाएंगे या वो डेमोन्स्ट्रेशन देगा, तो वो कॉस्ट पर पर्सन बहुत हाई हो जाएगी। चाहे ओवरऑल कॉस्ट कम आए, लेकिन कॉस्ट पर पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो बहुत हाई होगी पर्सनल सेलिंग में। Because of some technical reasons I cannot switch on the camera, otherwise ऑडियो में कभी कभी प्रॉब्लम आती है बीच में, तो इस वजह से मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाती हूँ। स्टार्टिंग में ऑन करके इसीलिए बाद में ऑफ कर देती हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से सुनाई दे और पीपीटी भी अच्छे से दिखाई दे। इवैल्यूएशन का सेकंड पॉइंट, कुछ स्कीम्स इम्प्लीमेंट की जाती हैं जिससे आप ये पता लगा सकें कि आपके जो सेल्स पीपल हैं, जो सेल्स मैन हैं, वो अच्छे से लोगों तक डेमोन्स्ट्रेशन पहुंचा रहे हैं या नहीं, अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप खुद ही उनसे कहते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट बेचकर दिखाओ, प्रेजेंटेशन देकर दिखाओ। तो वो होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम स्कीम्स, ताकि वो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं, आपको प्रेजेंटेशन देकर दिखाएं, और फिर आप उसमें कमियां निकाल सकें कि आपको कस्टमर को ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, ये गलत बोला, ये सही बोला। ये ऐसे इवैल्यूएट किया जा सकता है।
टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की कोई एड्स नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो एजेंसीज है, वो अपना काम करती हैं। आपको जो टेलीविजन पे दिखाई देती है वो तो एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है, जो वो एजेंसीज बना कर देती हैं, तो वो कुछ एड्स में नहीं पता चलेगा। शुभम, रोल मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। एक तो पहले से पता होना चाहिए सारे सेल्स पर्सन को। ऐसा नहीं है सपोज आप भी किसी कंपनी में सेल्स मैन है, मैं भी, और मुझे मैं कुछ और जाकर बोल रही हूँ लोगों को, आप कुछ और बोल रहे हैं, तो वो कैसे सिमेट्री होगी। तो पहले तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लिखी जाती है कि आपको भी ये बोलना है, मुझे भी ये बोलना है, ये इंफॉर्मेशन देनी ही देनी है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ फुलफिलिंग द ऑब्जेक्ट। उसके बाद सपोज एक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं हम, पर्सनल सेलिंग की उससे अच्छे से लोग परसू नहीं हो पा रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट की जाए, पब्लिसिटी की जाए, सेल्स प्रमोशन किया जाए, डिस्काउंट दिया जाए, ताकि लोगों तक वो बात अच्छे से पहुंच सके। तो ऑल्टरनेटिव्स भी सोच के रखने हैं। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव एंड इट्स कॉस्ट इम्प्लीकेशन, यानी हर चीज की कॉस्ट कितनी आएगी वो पहले से पता होना चाहिए, कि अगर इस टेरिटरी में जाना है तो इतना पैसा लगेगा, इतना पेट्रोल का खर्चा आएगा, इतना खाने पीने का खर्चा आएगा, ताकि आप हर एक का एस्टिमेशन लगा सकें और इफेक्टिवनेस देख सकें कि मैं 100 रुपये लगा के मुझे अगर 1000 का फायदा हो रहा है तो मैं वो करना चाहूंगी। सपोज कहीं पे 200 रुपये लग रहे हैं लेकिन 2000 का फायदा हो रहा है या 5000 का फायदा हो रहा है, तो मुझे वो ऑल्टरनेटिव अपनाना चाहिए। तो कॉस्ट का इम्प्लीकेशन देखना है। तो ये कुछ रोल थे, और क्या रिपीट करना है? काउंटरिंग मिसकंसेप्शन का मतलब है सपोज आपको मेरे प्रोडक्ट के बारे में कोई गलत फहमी है, उसको खत्म करना काउंटरिंग मिसकंसेप्शन कहलाता है, किसी भी तरीके की गलत फहमी को हटाना। ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग में बता ही चुकी हूँ आपको कि अवेयरनेस क्रिएट करना ऑब्जेक्टिव है उसका, प्रोडक्ट का डेमो देना, कुछ क्वेश्चन है तो उसका आंसर देना, नीड क्रिएट करना, गलत फहमियों को हटाना, अलग अलग चैनल के थ्रू प्रोडक्ट को पुश करना, रिटेल होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, और प्राइस में बार्गेनिंग करवाना, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। चलिए ये क्वालिटीज हम आज नहीं करेंगे क्योंकि काफी सारी क्वालिटीज हैं, आज पूरा हो नहीं पाएगा, तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक सेकेंड। ये वाली पीपीटी मैं अपलोड कर रही हूँ।
मैंने अपलोड कर दिए पीपीटी, एक बार आप चेक कर सकते हो। जो मैंने आपको लिंक भेजा है, सारी पीपीटीज अभी तक जितनी भी क्लास में हुई हैं सारी अपलोड कर दी गई हैं। Click on the link and let me know if you are able to retrieve all the PPTs. Difference between advertisement and personal selling under flexibility. Flexibility का मतलब है कि कोई ad जो है वो एक ही तरीके की ad सबको दिखाई देगी, हमारे पेरेंट्स को भी, हमें भी, हमारे फ्रेंड्स को भी, हमारे टीचर्स को भी, सबको सेम ऐड दिखाई देगी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ऐड के केस में। लेकिन जो पर्सनल सेलिंग है उसमें हर बंदे को आप अलग तरीके से परस्यू कर सकते हो उनकी इच्छा को जानकर, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। सपोज आपको लगता है कि कोई यंग पर्सन है, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा जा रहा है और प्राइस डजेंट मैटर टू हिम, तो आप टेक्नोलॉजी अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। अगर कोई ऐसा बंदा है जो प्राइस कम चाहता है प्रोडक्ट का और टेक्नोलॉजी के बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं है, तो आप प्राइस पे एम्फेसाइज करोगे कि ये देखो ये औरों से कम प्राइस में अवेलेबल है, तो ये औरों से बेहतर है। तो जैसे जैसे आपको लगता है कि किसी कस्टमर की पर्टिकुलर नीड है या एक्सपेक्टेशन है, आप पर्सनल सेल्स में उस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है सिर्फ पर्सनल सेलिंग में और ना कि एडवर्टीजमेंट में। निशिका, यस, तुम्हें ये थोड़ा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सबको हिंदी में भी बता पाऊँ और मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ हर पॉइंट को। अगर पर्सनल सेलिंग के लिए आपको मटेरियल में कुछ नहीं मिल रहा है तो मेरी पीपीटीज आर इनफ। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन तो हर पॉइंट की कराई है, मेरी पीपीटीज इनफ है। आप उन्हीं को थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं। आप जिसको प्रिंट करवानी है मेरी पीपीटीज को डाउनलोड कर लो और उसके बाद उसको पीपीटी का बैकग्राउंड चेंज करके आप प्रिंट करा सकते हो। चेंजेस आप कर सकते हो क्योंकि ये खुद पीपीटी फॉर्म में है, आप जैसे चेंजेस करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास और उसमें हम पर्सनल सेलिंग की कुछ स्टेजेस पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।